हमारे सहयोगी चैनल एनडीटीवी प्रॉफिट पर, जहां पर इस वक्त सुनील भारती मित्तल के साथ खास बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी तमन्ना। The tea, Tetley tea was bought over by Tata Tea, and of course the Jaguar Land Rover, which is much celebrated here in the UK. And then we have had other business houses who have come in here from time to time. It's a place where many people have their offices. They regularly come here. And so it is only natural that we looked at UK for business opportunities. And I must say that the welcome from the British government, the authorities, has been delightful. I think it's pretty easy to set up business here in the UK, and talent is available in abundance. And those who regularly come in and out of UK can vouch for it. There's a good place to do business. In particular, I must say, in the last 5, 7, 8 years, India's position in UK has really gone up. Indian businesses are particularly cherished here. They are seen as good corporate citizens, people who are getting more and more employment here locally, bringing technology from India, of course, besides the money that they come and invest here. So I think this is an award which recognizes India's rise in the global stakes in the business arena, and importantly, recognizes that those who work for India and UK's stepped-up relationship need to be awarded. Would this be the right way to also look at it, Mr. Mittal? And our viewers would be very interested in this angle, that when businesses need to be rescued, then Indian business leaders step up. And we've seen that time and again with UK businesses. We provide jobs there, we provide employment, and we save some of their businesses, like we saw with OneWeb. No, it's true. I mean, we saw that in GLR, we saw that in the steel, the Tata Chorus. We saw that in the refinery in Stanlow, which Ruiyas have set up and taken over. So yes, there are lots of good cases. I think Indians move fast. They are entrepreneurial in their very nature, unlike many European or American conglomerates who will take a lot of time. And some of these businesses need very quick and fast decisions. OneWeb, for example, was requiring a decision within days. A bid had to be assembled. Somebody had to lead the charge. The British government invited me right in the middle of the pandemic, and the bid was made during that time, and successfully the company was taken out of Chapter 11. A full satellite constellation of 640 satellites has been set up with a lot of investment and efforts right here from the UK, covering the entire globe. This is, to my mind, one of the sterling examples of India-UK cooperation. Yeah. We have a wide audience this evening, Mr. Mittal, watching you across our channels on the network, which is why I'm going to request you to explain to us the significance of a OneWeb, especially in the context of a Starlink, which is the big behemoth. Why is this such a big deal and at the cutting edge of communications and space technology today? Well, as you know, space is now getting a lot of focus and attention from all major global players. Thankfully, India is one of the major space actors in the world. In fact, when I was invited to the Downing Street to take OneWeb out of Chapter 11, the then Prime Minister Boris Johnson made a remark that India is truly a first-rate space nation. And, we do our own launches. India manufactures its own satellites. We are now planning to send astronauts to the moon. I mean, so much is happening. I heard our Honorable Prime Minister talk about India having its own space station by 2032. And what we did with the lunar landing just a few months back was a historic achievement and the lowest cost by any nation in the world. So India has something very special. And I think OneWeb, from that point of view, is an India-led British-partnered consortium, which, by the way, also has now the French government as a participant. It covers the entire globe. My industry, mobile industry, has not been able to cover the last 2.5 billion people on the internet. There are lots of dark areas, deserts, mountains, forests, oceans, in the skies. There are lots of places where you don't get connectivity. And what a LEO constellation does is precisely that. You can raise your hand anywhere in the world and you can be connected. It is the power of a LEO constellation.
Starlink is a formidable competitor. In fact, they have a lead. They are ahead in the race. They have put in many more satellites, and they have a large market presence already. Our model is very different from theirs. We are serving the governments, the defense forces, the industrial applications for mining and warehouses and manufacturing units in remote areas. We serve the maritime industry, the aviation industry, oil rigs, etc. So we will have our own business model where we will go and provide broadband connectivity, something that I have worked on for, I think, now over 2.5 decades. Yes. Telecom, as you know, has been my area of interest, and this just expands the area of broadband connectivity, especially of those people who have been left behind of not getting internet. तो आप सुन रहे थे सुनील भारती मित्तल को, जिनको अभी अवार्ड मिला है ब्रिटिश सरकार का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, जिसको कहा जाता है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। बात कर रही थी मेरी सहयोगी तमन्ना एनडीटीवी प्रॉफिट से। अब बढ़ते हैं आज की और खबरों की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। पर्वतीय राज्य हिमालय की सियासत राज्यसभा चुनावों में सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद से गरमाई हुई है। इस हार के बाद से राज्य की सुखविंदर सुक्खू सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। हार के बाद विपक्षी बीजेपी ने उनका इस्तीफा मांगा, लेकिन सुक्खू ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल कर लेगी। उधर खुद कांग्रेस के अंदर सुक्खू की संगठनात्मक क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भारी बहुमत के बावजूद राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार की हार का मुद्दा तो गर्म है ही। इसके बाद आज सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि देर शाम जब केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे तो अभी खबर ये आई है कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा पे जोर डालने का मन नहीं बनाया है। मतलब इस्तीफा दे तो दिया है, वापस नहीं लिया है, पर उसको प्रेस नहीं करेंगे कि इसको स्वीकार किया जाए। उनका कहना है कि वो अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ शर्तें निश्चित तौर पर आलाकमान के सामने, उनके ऑब्जर्वर्स के सामने रखी होंगी। इससे पहले उन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज करा दी थी और कहा कि उन्हें अपमानित किया गया है। बाद में पर्यवेक्षक के तौर पर हालात संभालने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं डी शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा से बातचीत के बाद अब विक्रमादित्य सिंह नरम पड़ गए हैं। विक्रमादित्य सिंह, आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह चाह रही थी, यानी विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह चाह रही थी कि राज्यसभा में उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। आपको ये भी बता दें कि विक्रमादित्य राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और कई समर्थकों ने इस बार उनके साथ में जाकर पार्टी आलाकमान के खिलाफ वोट किया था। इसीलिए कांग्रेस का उम्मीदवार यानी अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। ये सब लोग सुक्खू सरकार से नाराज हैं। हालांकि सुक्खू साहब का कहना है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग बैक द रेजिग्नेशन एंड देयर इज अ डिफरेंस between not pressing for your resignation till the time the dialogue and the action of the observers is not complete. तो मैंने ये कहा है क्योंकि हमने वार्तालाप ऑब्जर्वर्स के साथ करी है और ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। सर, ध्वनिमत से आपने बजट पास करवा दिया है, तो इसका क्या मायने माना जाए कि जो कॉन्फिडेंस है जो सरकार के लिए बोला जा रहा है वो आप लोगों के पास अभी भी है? मतलब जो एमएलएज हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलएज आपके साथ है? आप मुझे बताइए, 6 एमएलए को निकालकर फिर भी 34 एमएलए कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो 25 विधायक है, तो मेजोरिटी किसके पास हुई? हमारे पास हुई ना, कि उनके पास हुई? वो किस प्रकार की मेजोरिटी की बात कर रहे हैं? और जब हमने उन 9 एमएलए को तो नहीं निकाला था, जो 9 एमएलए जिसमें 6 कांग्रेस के थे, 3 इंडिपेंडेंट, वो क्यों नहीं आए बजट में? वो क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते? तो सुना आपने, सुक्खू को कॉन्फिडेंट सुनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुमत अभी भी उनके पास है। लेकिन इस बीच आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सुक्खू सरकार के सामने असली चुनौती बजट पास कराने की थी। ये बजट सत्र ही वहां पर चल रहा था और कल की हार के बाद से सवाल उठ रहे थे कि राज्य सरकार बजट पास करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। सुबह से ही बीजेपी ने बहुत दबाव सरकार पर बना कर रखा था।
बजट अगर गिर जाता, बजट पास नहीं होता, तो मतलब साफ था कि सरकार के पास अंकगणित में वो कमज़ोर है, बहुमत नहीं है, सरकार गिर जाती। लेकिन आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ने बीजेपी के 15 विधायकों को सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के आरोप में सदन से निष्कासित कर दिया। इसके बाद बजट ध्वनि मत से स्पीकर के द्वारा पास करा दिया गया और विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए इसके बाद स्थगित कर दिया गया। इस बीच अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस की नाक के नीचे से कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को राज्यसभा का चुनाव जिता दिया। मेरे साथ देखिए पर्दे के पीछे की वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल जाने के कगार पर आ गई है। वो सरकार जिसके पास बहुत आसान बहुमत है। दरअसल बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने आज से करीब हफ्ते 10 दिन पहले ये स्क्रिप्ट लिख ली थी। जब हर्ष महाजन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बनाया, तभी लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए इस चुनाव को जीत पाना आसान नहीं होगा। बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। उसमें हिमाचल प्रदेश के नेता भी आए थे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी टीम ने केंद्रीय नेतृत्व को ये फीडबैक दिया कि हर्ष महाजन ये चुनाव जीत सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए। इसके बाद क्या था, अमित शाह, जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर और सौदान सिंह जो कि पार्टी के अभी उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने मिलकर एक रणनीति पर काम किया और उस रणनीति के तहत ये तय हुआ कि हर्ष महाजन को चुनाव कैसे जिताना है। उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। दरअसल सुक्खू साहब की सरकार बीते करीब 13-14 महीने से चल रही है और सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो कांग्रेस के वो नेता हैं जिनसे बाकी धड़े नाराज़ चल रहे हैं। जैसे वीरभद्र सिंह की जो पत्नी है प्रतिमा सिंह, वो नाराज़ चल रही हैं। मुकेश अग्निहोत्री एक और बड़े नेता है, वो नाराज़ चल रहे हैं। आनंद शर्मा जो कि राज्यसभा जिनकी अभी ख़त्म हुई है, वहाँ से बड़े नेता हैं जो कि राज्यसभा में आना भी चाहते हैं, वो भी नाराज़ चल रहे थे। यही फीडबैक जयराम ठाकुर ने अमित शाह को दिया, जेपी नड्डा साहब को दिया और उसके बाद ये तय हुआ कि इस माहौल को कैपिटलाइज किया जाए। फिर क्या था, ये लोग जो नाराज़ थे, ये इसलिए नाराज़ थे मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिमा सिंह या विक्रमादित्य जैसे लोग, कि इनके लोगों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट के काम बिल्कुल सुक्खू सरकार में बंद हो गए थे। ये अपने लोगों को कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिलवा पा रहे थे। इसी बात को लेकर सबसे अधिक नाराज़गी थी और नाराज़गी की बात कई बार दिल्ली में आलाकमान को बताई भी गई। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में बैठे चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे राजीव शुक्ला हों जो कि प्रभारी हैं हिमाचल के, उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इस बागी खेमे को एक साथ आने का मौका मिल गया। बागी इन द सेंस की जो लीडरशिप के साथ बागी था, सुक्खू साहब के साथ बागी था। तो इस सुक्खू के तमाम विरोधी एक हो गए और इन लोगों ने ये तय किया, दिल्ली में खबर भिजवाई कि हम अपना उम्मीदवार तभी जितवा सकते हैं जब सुक्खू साहब को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़े। इस पर भी आलाकमान ने ध्यान नहीं दिया। हुआ ये कि इन द मीन टाइम ये सब चीज़ें बीजेपी को दिख रही थी। बीजेपी भांप रही थी कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा के अपने उम्मीदवार को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से ना भेजकर कांग्रेस की लीडरशिप ने राजस्थान से नॉमिनेट करवाया। राजस्थान से वो अब राज्यसभा में आई हैं। तभी बीजेपी को लगा कि कांग्रेस के अंदर ये नाराज़गी है और कांग्रेस के टॉप लीडर भी जानते हैं कि सोनिया गांधी को भी हिमाचल से जितवा पाना आसान काम नहीं होगा, इसीलिए उनको सेफ राजस्थान में भेजा गया। यहीं पर अमित शाह ने सौदान सिंह बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और पहाड़ी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको ये दायित्व सौंपा कि आप शिमला में रहें, शिमला में रहकर लोगों से मिलें और ये चुनाव पार्टी कैसे जीत सकती है उस पर काम करें। कांग्रेस ने क्या किया, अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बना दिया, इस उम्मीद से कि अभिषेक मनु सिंघवी एक बहुत बड़े वकील हैं, केंद्रीय नेतृत्व के करीबी रहे हैं और उनके पास धन बल की भी कमी नहीं है, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े वकीलों में उनकी गिनती होती है। तो अगर कुछ विधायकों को समझाना हुआ, मनाना हुआ, पटाना हुआ, तो वो काम अभिषेक मनु सिंघवी कर पाएंगे। लेकिन सौदान सिंह जब शिमला पहुंचते हैं, अगर मैं बीजेपी खेमे की बात करूं, तो वो अपने साथ हर्ष महाजन को लेते हैं। वो हर्ष महाजन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, जो अब राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। इनके बारे में बताऊं मैं आपको, हर्ष महाजन वीरभद्र सिंह के करीबी लोगों में गिने जाते थे। पिछले साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने पाला बदला है और ये बीजेपी में शामिल हुए थे। हर्ष महाजन के साथ मिलकर सौदान सिंह ने
प्रतिमा सिंह, विक्रमादित्य, मुकेश अग्निहोत्री, इनके खेमे के जो इक्का दुक्का विधायक जीत के आए थे, करीब 9 से 10 विधायकों से संपर्क साधा और कहा कि आपको पार्टी के लिए, मतलब बीजेपी के लिए वोट करना है, बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को जिताना है। यह वही हर्ष महाजन है जो कल तक कांग्रेस में आपके साथ ही हुआ करते थे। सौदान सिंह ये काम आसानी से अपना सौदा, जिसको आप कह सकते हैं, वो कर पाए। अभिषेक मनु सिंह भी यहीं पर मात खा गए। वो डिनर देते रहे, लोगों से मिलते रहे, उनको लगा कि शायद ये विधायक टूट कर नहीं जाएंगे। लेकिन ठीक वोटिंग के एक शाम पहले दावत हुई तो ये तमाम लोग उसमें शामिल हुए। लेकिन जब वोटिंग होनी थी मंगलवार की सुबह, तो ये सभी लोग धीरे धीरे कर लापता होना शुरू हो गए। ये सुखविंदर सुक्खू के खेमे से दूरी बनानी शुरू कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी के फ़ोन उठाने इन्होंने बंद कर दिए। और ये कहाँ मिले? ये मिले बीजेपी के खेमे में जयराम ठाकुर के साथ। और वहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, उन तमाम लोगों ने जेपी नड्डा के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बना ली थी कि इनको वहाँ से दूर कर देना है। और यहीं पर साबित हो गया कि किस तरीके से बीजेपी ने एक ऐसा चुनाव जीत लिया जो उसके लिए असंभव था। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा चुनाव हार गई जो उसके लिए बहुत आसान था। 68 की विधानसभा है हिमाचल प्रदेश में, 34 से 35 विधायक चाहिए होते हैं। कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। 3 इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे इस सरकार को, जब तक ये पूरी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। ये 3 तो टूटे ही टूटे जो इंडिपेंडेंट थे। कांग्रेस के अपने 6 से 7 विधायक भी इससे अलग हो गए। बीजेपी के पास 25 विधायक थे, उसने आंकड़े को 25 से बढ़ाकर 34 कर लिया। और कांग्रेस ने अपने आंकड़े को 43 से घटाकर 34 कर लिया। मैच टाई हुआ। और टाई होने पे ये नियम है संविधान के तहत कि जब पर्ची निकलती है, पर्ची से तय होता है, तो जिसका नाम पर्ची में निकल आता है वो उम्मीदवार हार जाता है, जिसका नाम नहीं निकलता है वो उम्मीदवार को जीता हुआ माना जाता है। तो यही हुआ, जब पर्ची निकली तो वो पर्ची अभिषेक मनु सिंघवी की निकल आई। वो चुनाव हार गए क्योंकि मैच टाई था और हर्ष महाजन ये चुनाव जीत गए। तो बीजेपी ने 10 दिन में इस चुनाव को पूरा पलट के रख दिया और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, वो अभी भी पार्टी पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहा है, खासकर उन राज्यों में जहां पर उनकी अपनी सरकारें हैं और जहां पर खेमेबाजी ज़्यादा है। आखिर में एक लाइन और, अब जब सुक्खू साहब चुनाव उनके नेतृत्व में राज्यसभा का नहीं जितवा पाए हैं, तो मॉरली, नैतिकता के आधार पर उन पर दबाव है इस्तीफ़ा देने का। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या उनको हटाकर कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? वो प्रतिमा सिंह होंगी, उनके बेटे विक्रमादित्य होंगे, या मुकेश अग्निहोत्री होंगे, या कोई चौथा आदमी होगा? अब कांग्रेस में अटकलें इस बात पर इन दिनों काफ़ी जोर पकड़ेंगी। धन्यवाद। इसके बाद आइए चलते हैं, आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, अपनी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में एक फर्जीवाड़ा आजकल खूब चल रहा है। अगर कोई जिंदा हो और उसे मरा हुआ बताकर अनुग्रह राशि ले ली जाए तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में ऐसा एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल 2003 से मध्य प्रदेश में कामगारों के लिए एक कल्याण मंडल बना हुआ है। राज्य में 90% से अधिक मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद निर्माण के काम में जुड़े श्रमिकों की है। इन्हीं श्रमिकों के लिए मंडल से जुड़े काम के दौरान मृत्यु और दुर्घटना होने पर अंत्येष्टि के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। रजिस्टर्ड श्रमिक की दुर्घटना में स्थायी या आंशिक चोट लगने पर भी अनुग्रह राशि दी जाती है। लेकिन अकेले राजधानी भोपाल में इसमें करोड़ों का घोटाला हो गया है। जिंदा मजदूरों को मुर्दा बताया गया, फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाकर उनके फर्जी खाते खोले गए, उसमें पैसे पहुंचे, 2-2 लाख रुपए की सहायता हुई, लेकिन ये पैसा इन लोगों तक तो पहुंचा ही नहीं, भले ही वो मुर्दा हुए या वो जिंदा रहे। सवाल ये है कि आखिरकार ये पैसा कहां जा रहा है? हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मेहनत कर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसको आपको देखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि सरकारी लाल फीताशाही कैसे आम आदमी पर कोड़े बरसाती है। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम ये सरकारी कागज बता रहे हैं। ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। ये तफ्तीश उन कागजी मुर्दा लोगों की है जो जिंदा हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उन्हें मार दिया गया। फिर उन्हीं को नॉमिनी बनाया गया और श्रमिक बोर्ड से मिलने वाली 2 लाख की राशि किसी और ने निकाल ली।
पता लगाते हुए हम भोपाल के चांदबड़ इलाके में पहुंचे, जहां उर्मिला बाई रायकवार रहती हैं। 12 लोगों का परिवार है। इस कागज के मुताबिक उनकी मौत हो चुकी है। पिछले साल जून में मुर्दा उर्मिला के नाम पर सहायता राशि के 2 लाख जिंदा उर्मिला को मिल गए। सवाल किया तो मजबूरी वाली हंसी 2 चेहरों पर थी। बता रहा हूँ मर गई भैया, हमको बता। हम नहीं, ये सरकारी कागज बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि आपके नाम पर इस खाते में 90271 बाकी जो भी है 3167, इसमें 2 लाख रुपए मिल गए हैं आपको 5/6/2023 को। नहीं, मतलब आज 6-7-8 महीने पहले आपको 2 लाख मिल गए, आपकी मौत भी हो गई। नहीं हुए न हमारी न जिंदगी में, तो न 2 लाख मिले, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो मैं तो भैया चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा भी छोड़े मैंने 2-1 साल हुई जब से ये हटे का आया था ना, जब से छोड़ा मैंने काम, जब से गई नहीं कहीं काम करने, जाने नहीं देते बच्चे। जरूरत नहीं होगी तो अपने पैसों की, कि मरने के बाद में हमारे बच्चों को मिलते कम से कम। पर आप तो जिंदा हैं। जिंदगी होंगे, अभी हिड़ रहा उनने पैसे क्या कर अभी मार डाला भैया। तो ये उनका समग्र पोर्टल पर नाम, और ये जो नगर निगम की सूची है जिसके मुताबिक इनको 2 लाख रुपए मिल गए हैं 5/6/2023 को। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अपने नाम में नॉमिनी भी यही है, मतलब मृतक भी यही और मृतक की नॉमिनी भी यही, जिनको, और ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 11 नाम है 118 की लिस्ट में, जिनमें जैसे वसीम, इनका भी नॉमिनी वसीम, मोहम्मद मतीन, इनके नॉमिनी भी मोहम्मद मतीन, मोहम्मद कमर, अनीता बाई। तो घोटाले के कई स्वरूप होते हैं। इस कहानी से हो सकता है कि सिस्टम पर आप हंसें, तरस खाएं या फिर गुस्सा करें, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पर इसी सिस्टम में क्या क्या खेल हो रहे हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद कमर जी रहते हैं। घर ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पहुँच गए। ये भोपाल का पुष्पानगर इलाका है, 80 फीट रोड कहा जाता है। तमाम इस फहरिस्त में नामों की पड़ताल करते हुए हम अब पप्पू अलमारी, इनका नाम मोहम्मद कमर जी है, पप्पू अलमारी कहते हैं इलाके में, उनके घर पर पहुंचे हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि कागज़ों में वो भी मृत हैं और उनके नाम पर भी 2 लाख रुपए निकाल दिए गए हैं। पिछले साल सरकारी कागज में मोहम्मद कमर जी की मौत हुई। 21 जून को मोहम्मद कमर को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिल गई। ये मोहम्मद कमर जी हैं, 48 साल के, 1974 उनकी पैदाइश है, और ये वो सूची है 118 लोगों की जो बता रही है यहाँ पर मोहम्मद कमर जी 2 लाख रुपए इनके नाम से निकले हैं। तो ये कागज तो कहता है कि आपकी मौत हो गई, आपने 2 लाख रुपए भी ले लिए, तो आप तो साक्षात खड़े हैं। नहीं, ये देख के मैं तो करेगी, इसलिए मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मेरा कार्रवाई करी है मेरे लिए ये, और इसकी जानकारी हासिल करी है, किसने क्या करा है, कागज़ों में गड़बड़ी, इसकी पूरी जाँच करी जाए। कमर अपने नाम पर ही मुर्दा बन गए, लेकिन जिसके लिए श्रमिक कार्ड बना, जिसमें बेटी की शादी में 51,000 मिलने थे, वो आज तक नहीं मिले। अपने यहाँ निकाह तो उनका लड़की का यही हुआ था, अपने अलग ही हुआ था, उसमें अपन ने भरी थी इस कार्ड के द्वारा। अच्छा। इससे मिलते हैं लड़की को 51,000। वो भी नहीं मिला? वो नहीं मिला, और उन्होंने पूरी फाइलें में से गड़बड़ी करके ये कर दिया पूरा। तो ये आपके लिए दुखद है या हंसी आ रही है कि आप ही को? दुखद है साहब, किसी हमारे लिए क्या, किसी के लिए भी, कि अपन किसी सरकारी गवर्नमेंट में कोई कागज नहीं दे सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते, किस तरह भरोसा करोगे आप, ये बताओ। हाँ, ये कागजी मुर्दा हैं, लेकिन जो जिंदा हैं, जिन्होंने योजना के तहत आवेदन नहीं किया, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। लीलाबाई भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में रहती हैं। बेटी की मौत हो चुकी है, उनके नाम पर भी किसी ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। अब लीलाबाई परेशान हो रही हैं। हाँ, बेटी खत्म हो गई, उसके नाम पे जब भी घोटाला कर दिया, अजय नगर निगम वाले जाने, हम नहीं जाने। जो 118 फाइलें हमें मिली, उससे कुछ बातें समझ में आई। ज्यादातर मामलों में ई पेमेंट ऑर्डर यानी ईपीओ रात 11 बजे के बाद निकला। ईपीओ के लिए धुंधले मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड हुए, किसी आईडी में आधार नंबर अपडेट नहीं था। कई मामलों में मौत से ठीक पहले समग्र आईडी बनी। फर्जीवाड़े के लिए उन श्रमिकों को चुना गया जिनकी मजदूरी डायरी सक्रिय नहीं थी। कर्मकाल कल्याण मंडल अब तक 61,238 हितग्राहियों को मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि और अनुग्रह सहायता के नाम पर 775 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। पंजीकृत श्रमिकों को योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता में 6,000 रुपए, सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए और दुर्घटना मृत्यु में 4 लाख रुपए की सहायता मिलती है। सरकार कह रही है मामले की जांच कराएंगे। देखिए, जो भी इस प्रकार से गलत काम करेंगे वो
सभी को जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होती है। ये हमारी सरकार है जहाँ पर इस प्रकार से गड़बड़ी करने वाले लोग तुरंत पकड़ में आते हैं और बात बाहर आ जाती है। जुलाई 2023 में ही नगर निगम के पास गड़बड़ी की शिकायत पहुंच गई थी। 90 संदिग्ध फाइलों का पता लगा, लेकिन मूल नस्ती वाली सिर्फ 37 फाइलें मिली। 53 का पता ही नहीं चला। लगभग 2.5 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ एक नगर निगम में सामने आया है। पूरे मध्य प्रदेश में जाने इस घोटाले की परतें कितनी गहरी होंगी। कुछ सालों पहले हमने बताया था कि कैसे श्रमिकों के कल्याण का, उनके हक का पैसा ऊर्जा विभाग को सब्सिडी में दे दिया गया, और अब ऐसी दरियादिली भी दिखाई गई है श्रमिकों के हक के पैसे से कि मोहम्मद इदरीस की नॉमिनी पार्वती देवी हैं। न्याय कब होगा, कैसे होगा, ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये गरीब श्रमिकों का पैसा है जिनकी परवाह भाषणों में तो खूब होती है, हकीकत में शायद कभी नहीं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। दरअसल यही सच्ची पत्रकारिता है, जब आप लोगों के मुद्दे उठाएं और सरकारी लाल फीताशाही का पर्दाफाश करके रख दें। अनुराग की कोशिश भी यही थी और एनडीटीवी इंडिया के तमाम रिपोर्टर्स इसी कोशिश के तहत आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहते हैं। और खबरों की खबर में बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इन दिनों एक महिला पुलिस अधिकारी सुर्खियों में है। इस अधिकारी ने एक महिला को गुस्साई भीड़ से बचाया है। अब इस महिला अधिकारी का नाम बहादुरी के पुलिस मेडल के लिए भेजा गया है। लाहौर के इचरा बाजार में एक महिला के कपड़े पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था, जिसे भीड़ ने ईश निंदा मानकर उसे घेर लिया। तभी एएसपी सईदा शहरबानो नकवी उस महिला के लिए देवदूत बनकर आई और उसकी जान बचा ली। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी इस महिला अधिकारी को बुलाकर उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। लाहौर की एएसपी सईदा शहरबानो की इस बहादुरी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। करीब 300 लोगों की भीड़ ने उस महिला को लाहौर के इचरा बाजार के एक दुकान में घेर लिया था, जिसके कपड़े पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था। भीड़ ने इसे कुरान की तौहीन के तौर पर लिया और महिला की जान लेने पर उतारू हो गई, जबकि भीड़ में किसी को नहीं पता था कि कपड़े पर क्या लिखा है। लेकिन तभी एएसपी शहरबानो वहां पहुंची। उन्होंने न सिर्फ भीड़ को समझाया, बल्कि महिला को उनके बीच से निकाल कर ले गईं। हमने बुर्का अरेंज किया, उनका जो चेहरा है उसे ढांपा और बाद में फिर लोगों से ये कहा कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। लाहौर पुलिस के मुताबिक भीड़ को उकसाने में तहरीके लबैक पाकिस्तान का हाथ था, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही कट्टरपंथी जमात है। जांच में यह भी पाया गया कि महिला के कपड़े पर जो लिखा था वो कहीं से भी कुरान या इस्लाम के खिलाफ नहीं था, बल्कि अरबी भाषा में हलवा लिखा था, जिसका मतलब होता है खूबसूरत। ये खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। शहरबानो की बहादुरी की तारीफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी की है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी उनकी शान में कसीदे गढ़े हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। पंजाब के आईजी पुलिस ने शहरबानो का नाम कायदे-आज़म पुलिस मेडल के लिए भेज दिया है। पाकिस्तान में ईश निंदा के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। कट्टरपंथी ताकतें ईश निंदा का आरोप लगाकर कईयों की जान ले चुकी हैं। शहरबानो ने वैसी ताकतों से जूझते हुए एक मिसाल पेश की है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।